Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, in this meeting, we will study alkenes. Some of the part from alkenes it we have already studied. In this period, we will study methods of preparation of alkenes. Sorry, alkenes. How alkenes they are prepared. We know that alkene contains double bond in them. They contain double bond. Okay. In this way, alkenes they contain double bond. Now, most of the methods of preparation of alkenes involve elimination of atoms or groups of atoms from two adjacent carbon atoms. How they are prepared? Alkene they are prepared by elimination. Elimination means removal of atoms or group of atoms from two adjacent carbon atoms. These are the two adjacent carbon atoms, near carbon atoms, which are attached to each other. Adjacent means very near to each other. So this is an alkene. How it is formed? It is formed by elimination of this group of atoms or this group of atoms from adjacent carbon, from nearby carbon atoms. In this way, we have got alkene plus XY. This group of atom it is removed, eliminated. For example, let us see first type of reaction is dehydration by dehydration of alcohols. What do you mean by dehydration? Dehydration means removal of water. D means removal. Hydrate means water. Dehydration means removal of water molecule. Okay. In many times this term is generally used in case of what I say in summer seasons. तो काली के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, कभी कभी हम तरबूज के ऊपर पानी वगैरह डायरेक्ट पी लेते हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके बॉडी में का पानी निकल जाता है, उसको दस्त लग जाते, पाकने लग जाते, जिसकी वजह से बहुत कमजोर हो जाता है। तो ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर यानी पानी पिलाओ उसको, क्योंकि उसका डिहाइड्रेशन हो चुका है, एकदम कमजोर हो रहा है, वो दो आदमी पकड़कर उसको लेके जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से यहाँ पर इन दिस एग्जांपल देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। How that remove? By dehydration of alcohols means water molecule is removed from the alcohol. How it is removed? By the reaction with sulfuric acid. ठीक है? When an alcohol is heated with sulfuric acid or in presence of sulfuric acid, water molecule is eliminated or removed and alkene is formed. You can say an alkene is formed. An alkene is formed by dehydration of alcohols. How dehydration it is carried out? By heating alcohol with H2SO4. Okay? In this way, this alcohol it is heated with H2SO4. What happens? Elimination from adjacent carbon atoms occur. This hydrogen and this hydroxy group, they are eliminated. This H2O you will found here. H2O is removed and this hydrogen atom, this what we say electrons, they come here. This
two electron they will come here. ठीक है, CH double bond CH2. So in this way, when alcohol it is heated with H2SO4, it undergoes dehydration to give alkene. For example, this is one propanol. Alcoholic group, hydroxy group, it is present at position number 1. So one propanol. When it is heated with H2SO4 at high temperature 170 degrees centigrade, two water molecule is removed from the adjacent carbon atom. One hydrogen, hydroxy group. And there is formation of propene plus H2O. And simple example that of ethyl alcohol or ethanol. When ethanol it is heated with H2SO4 at 170 degrees centigrade temperature, ethylene is formed, water molecule is removed. How? This is OH group, okay? OH group, यहाँ पर हम उसको ले सकते हैं OH group और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम. So one hydrogen atom from this methyl group and hydroxy group from CH2 group. Both are eliminated. तो यहाँ पर क्या रहेगा CH2 रहेगा. ठीक, तो ये हाइड्रोजन एटम के जो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गए. ठीक है, in this way CH2 plus H2. In this way, when alcohol is heated in presence of sulfuric acid, there is elimination of water and alkene is formed. Now the ease of dehydration of alkene is alcohols is in this order. Now how that alcohol undergoes dehydration easily? Tertiary alcohol, it undergoes dehydration very easily as compared to secondary alcohol and primary alcohol. Okay, this is the order of dehydration of alcohols. Tertiary alcohols, they will undergo dehydration very easily, most easily we can say, as compared to secondary and primary alcohol. You should remember this order of dehydration of alcohols. So with unsymmetrical secondary or tertiary alcohols, elimination can proceed in two ways and mixture of alkene is formed. ये सिमेट्रिकल अल्किन है, तो सिमेट्रिकल अल्किन के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाइड्रोजन एटम कहीं से भी रिमूव कर दे. ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कोहल अगर है तो उसके अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमेट्रिकल यानी दोनों साइड के अंदर में एक जैसे कार्बन एटम्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कहीं से भी हम रिमूव कर दें. अगर सिमेट्रिकल अल्कोहल के अंदर में हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन जिसके अंदर में दोनों साइड के अंदर में अलग अलग या ऑड कार्बन एटम्स है जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे के अंदर में दो तरीके होंगे एलिमिनेशन, दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. सो एलिमिनेशन कैन प्रोसीड इन टू वे, दो तरह से एलिमिनेशन हो सकता है, रिमूव हो सकता है. और मिक्सचर ऑफ अल्किन्स इज फॉर्म, दोनों का मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन ऑफ 2 butanol, it gives 2 butene as the major product and 1 butene as the minor product. Two butanol, here you may be able to see the 2 butanol है. In 2 butanol there are two chances. One chance is they may be removed from this atom, from adjacent carbon atom, तो ये यहाँ से भी हम रिमूव कर सकते हैं. दो चांसेस हैं. तो क्या हो रहा है, when 2 butanol is heated, it is symmetrical alkane, 1 2 3 4 alcohol, sorry, symmetrical alcohol. In this symmetrical alcohol, what is formed here, 2 butanol, it is removed one atom, hydrogen atom from this and other hydroxy group from this. 2 butane it is formed.
ओके, 2 butane it is formed 80% yield, 80% फॉर्म होता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है, यहाँ पर से एक एच इसमें से, एक एच इसमें से और ओ एच इसमें से। लेक्चर चालू है क्या? ये टॉपिक दिए उन्होंने, वो बताएंगे। ये सर माइक्रोफोन किसका चालू है प्लीज ठीक है, ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो। बच्चे उनके उनमें चलेंगे क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उसे वीडियो स्टॉप कर बोलते। ओके, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद शेट्ज़ेफ रूल। मेजर सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही सर। आवाज तो फुल है इसमें। हाँ अब आ रही सर। So this is in accordance with शेट्ज़ेफ रूल। शेट्ज़ेफ रूल क्या बताता है? This rule state that when such alternatives exist, यानी ऐसे टाइप के जब अल्टरनेटिव्स हमारे पास है कि हम दोनों तरह से जो है तो रिएक्शन कर सकते हैं, इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं या इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, दो चांसेस है हमारे पास। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन एटम विथ फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन ऐसी हालत में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम प्रेफरेंस देता है, हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियली रिमूव। ऐसे हाइड्रोजन एटम को प्रेफरेंस दिया जाता है bearing less number of hydrogen atoms। ऐसे कार्बन को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके अंदर में कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं तो दो चांसेस है, एक यहां से भी हम रिमूव कर सकते हैं, यहां से भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर में क्या है, ये कार्बन एटम के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं? हेलो, ये कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं? हेलो, जवाब दो बच्चों। इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए, ठीक है। और इस कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसा अल्टरनेटिव हमारे पास है, एक तो 3 में से भी हम एक रिमूव कर सकते हैं या 2 में से भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये रूल क्या बता रहे हैं, अगर ऐसा अल्टरनेटिव आपके पास है तो कार्बन एटम हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन एटम को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसमें फ्रॉम द कार्बन एटम विथ फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे हाइड्रोजन एटम को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन एटम्स, तो इसके ऊपर 3 है और यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम्स, इसलिए प्रेफरेंशियली यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, ठीक है। इन दिस वे शेट्ज़ेफ रूल क्या बताता है आपको, दिस रूल स्टेट्स दैट, ये बताता है कि व्हेन सच अल्टरनेटिव एग्जिस्ट हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव, प्रेफरेंस दिया जाता है, ज्यादातर होता है eliminated from the carbon atom with fewer number of, fewer means less number of hydrogen atoms। तो ये दोनों कार्बन एटम में से इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 2, इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो शेट्ज़ेफ रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग शेट्ज़ेफ रूल दिस कार्बन एटम इज bearing 2 number of hydrogen atoms, means less number of hydrogen atoms as compared to this 3 carbon number 3 number, therefore hydrogen atom is preferentially, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा ये हाइड्रोजन एटम। सो परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन इज 80%, 80% ज्यादा फॉर्मेशन होता है, 20% इसके चांसेस, ठीक है। So dehydration of alcohols, it may also be carried out by passing alcohol vapors, alcohol के vapors, alcohol की भाप और heated alumina Al2A3। अल्कोहल का आपको डिहाइड्रेशन करना है तो दूसरे तरीके, एक तरीका तो हमने देख लिया, क्या कर रहे हैं हम, अल्कोहल को हीट कर रहे हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम के ऊपर से
एडजेसेंट कार्बन आइटम के ऊपर से ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो रहा है और अल्कीन फॉर्म हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बी कैरिड आउट बाय पासिंग अल्कोहल वेपर्स ओवर हीटेड एल्यूमिना। हीटेड एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना है, उसके ऊपर से अल्कोहल के वेपर्स अगर पास कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, then there will be formation of alkene. Other dehydrating agents may be used as phosphorus pentoxide and phosphoric acid. ये एल्यूमिना की जगह आप दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, डिहाइड्रेशन मींस मैं आपको बताया, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड या फॉस्फोरिक एसिड, इसको भी हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन तीन तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो H2SO4 के साथ में हीट करके, दूसरा तरीका क्या है, H2SO4 के साथ जब हीट करेंगे तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे। एल्यूमिना के साथ में करें तो एल्यूमिना के ऊपर से इस अल्कोहल के वेपर्स आप पास करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, या दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर में इसके ऊपर से, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के ऊपर से ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड या फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर से ये वेपर्स पास करेंगे, देन आल्सो यू विल गेट अल्कीन। मैकेनिज्म पूरा नहीं लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर में हम मैकेनिज्म देखेंगे। सेकंड मेथड इज बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। डी का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी आपको बताया मैंने, डी का मतलब, यस, डी मीन्स रिमूव, डी का मतलब होता है निकालना, रिमूव करना। हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन एटम और हैलोजन एटम, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ये हमारा अल्किल हैलाइड है। अल्किल हैलाइड में से क्या रिमूव करना है हमको, हाइड्रोजन और हैलोजन एटम। ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया H2O4 के फॉर्म में, और हैलोजन भी रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ KX, ठीक है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन एंड हैलोजन, दोनों बोल सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं, यहाँ पर HX भी बोल सकते हैं, या आप हाइड्रोजन एंड हैलोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। किस तरह से होता है ये, when alkyl halide is heated with alcoholic solution of sodium और potassium hydroxide। अल्कोहल यहाँ पर लिखना जरूरी है, अल्कोहलिक solution of potassium hydroxide और sodium hydroxide। Then what happens, a molecule of hydrogen halide is eliminated, eliminated means removed। ये हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर से रिमूव हो रहा है, तो रिमूव होकर आपको क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है। दिस इज इन सब where applicable Schweitzer rule is followed। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, Schweitzer rule is followed, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन, अल्किल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मतलब होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? हेलो, अनम्यूट करो अपने फोन, आप बोलो। क्या मतलब होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम देखते हैं बॉटल में भरा हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा बॉटल के ऊपर रैक के ऊपर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर इन द फॉर्म ऑफ पिलेट्स। वो किस फॉर्म में होता है, छोटे छोटे गोलियों के फॉर्म में होता है। जैसे हमारे शर्ट के बटन लगे होते, छोटे छोटे उभरे वाले बटन रहते ना, उस टाइप के बटन्स के रूप के अंदर में छोटे छोटे उसके पिलेट्स बोलते हैं उसको, वी यूज्ड टू कॉल देम एज पिलेट्स, उसके शक्ल में होता है, ठीक है। when these pellets they are dissolved in water, that solution it is called as aqueous KOH or aqueous NaOH, ठीक है। अगर ये KOH यानी जो पिलेट की शक्ल में है
हम वाटर के अंदर में डिजोल्व करते हैं तो वो बनता है हमारा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी के OH को अगर हम अल्कोहल के अंदर में डिजोल्व करते हैं तो वो बनता है हमारा अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों में ये फर्क है, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, दोनों की रिएक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ में कर रहे हैं तो अलग रिएक्शन होंगी, और अगर आप व्हाट यू कॉल एक्वस अल्कोहल के साथ में कर रहे हैं तो अलग अलग रिएक्शन होगी। देखा होगा आपने, एक्वस अल्कोहल के साथ में कर रहे हैं तो जस्ट ये रिमूव हो जाएगी, ये रिप्लेस होकर उसकी जगह OH लग जाएगी, कुछ भी नहीं होगा इधर। ये क्या है, अल्किल हलाइड है तो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्वस KOH ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये कोई KOH के जो पिलेट्स है, उसके जो पिलेट्स छोटे छोटे से हमने इनको डिजोल्व किया है, काय में डिजोल्व किया, वाटर के अंदर, ठीक है। तो व्हेन an alkyl halide is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide, a molecule of hydrogen halide is eliminated and alkene is formed. इस तरह से अल्कीन फॉर्म होता है, ठीक है। ये HX यहां से रिमूव हो गया और ये अल्कीन फॉर्म हो गया, H ये X इसके साथ कंबाइन होगा KX, ठीक है। और OH और ये H, ये OH और ये H, इस तरह से H2O ये फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरह से 1 ब्रोमोप्रोपेन, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल, इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करें तो क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पर, ये NaBr, ठीक है, ये NaBr, इथिलीन इज फॉर्म, और इसमें का एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम और ये OH, ये क्या हो गया, एक निकलने के बाद यहाँ पर आ गया CH2 और ये OH, ठीक है, NaBr प्लस H2, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी। द ईज यानी आसानी, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज एज फॉलोज, यानी कौन सा अल्किल हैलाइड आसानी के साथ में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंडर वो होता है, ठीक। तो ये समझ में, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड या हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। किस तरह से करते हैं, अल्किल हैलाइड को हीट करते हैं, अल्कोहलिक या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड, ये हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होता है और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होता है, ठीक है। ये ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो टर्शियरी हैलाइड ये बहुत आसानी के साथ में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर घुस जाता है, ठीक है, बहुत आसानी के साथ में हम इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का थोड़ा मुश्किल से होता है, और टर्शियरी अल्किल प्राइमरी अल्किल हैलाइड का और मुश्किल से होता है, ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह लगेंगे, यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशंस वगैरह लग जाएंगे, तो आसानी के साथ में जिसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है वो टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन alkenes, ethene and propene have no structural isomers, ethene और propene में स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं है, but there are 3 ब्यूटिलीन या ब्यूटीन के 3 आइसोमर्स, ऑफ these 2 are straight chain, उसमें के 2 straight chain है, with difference being in the position of double bond in the molecules. They are described as position isomers. इसके 2 आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स है टोटल, 3 आइसोमर्स में 3 आइसोमर्स है, 3 में से 2 कैसे हैं, स्ट्रेट चेन आइसोमर्स और एक ब्रांच, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट चेन आइसोमर देख रहे हैं। स्ट्रेट चेन आइसोमर्स में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें 1 ब्यूटीन है, 1-2 पोजीशन के अंदर डबल बॉन्ड है, इसमें 2 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड, 2-3 यानी 2 लेते हैं पहले, ठीक। द थर्ड ब्यूटीन इज ब्रांच चेन आइसोमर, ये ब्रांच चेन आइसोमर है, ये भी ब्यूटीन ही है, 1 2 3 4, लेकिन ये ब्रांच है इसलिए इसको अलग से रख रहे हैं, ठीक है।
we know that carbon carbon double bond is made up of one sigma and one pi bond. ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। ठीक है, the pi bond prevents free rotation about the single bond. pi bond क्या करता है, it prevents free rotation about the double bond. double bond को हम freely rotate नहीं कर सकते। this prevention of rotation about the carbon carbon double bond gives rise to phenomenon of geometrical isomerism. इसके वजह से क्या होता है, geometrical isomerism form होते हैं, isomers form होते हैं। an alkene having formula RCH double bond CHR can have two isomers depending upon whether the two alkyl groups are on the same or opposite side of the double bond. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आइसोमर में दोनों अल्कीन ग्रुप एक ही जगह है, एक ही पोजीशन पे ऊपर है। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। methyl groups are on the same side of the double bond, we are calling as cis butene. माइक्रोफोन किसका चालू है, बंद करो प्लीज। So if they are on the same side, depending on whether the two alkyl groups are on the same side or opposite side of the double bond. If two alkyl groups are on the same side, it is called as cis isomer. ठीक है, ये आइसोमर में क्या है, दो अल्किन ग्रुप एक ही साइड में, we are calling it as cis isomer. If these two alkyl groups they are on the opposite side, it is called as trans isomer. Two geometrical isomers are possible for 2-butene. 2-butene के लिए दो geometrical isomers possible है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड को हम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। सिस आइसोमर मींस these two alkyl group, similar alkyl group, they are on the same side of the double bond. ठीक है, if alkyl group they are on the opposite side of double bond, ये opposite side में, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, it is called as what we call geometric trans isomer. If two alkyl groups they are on the same side, it is called as cis isomer. If they are on the opposite side, it is called as trans isomer. Okay, if you have difficulty, you may ask. कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में? इसका मैकेनिज्म रह गया है, मैकेनिज्म कल के पीरियड में हम कवर कर लेंगे। यस, yes, any difficulty you ask please. You should not hesitate to ask. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो you may ask freely. ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर एक बार कल मिलेंगे।